हेलो फ्रेंड्स, अंतही कुछ अंतही बातों के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। और जो हमारा आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक्षा से, जिन्होंने जियोलॉजी ऑनर्स किया है हंसराज कॉलेज से। शी हैज़ ऑल्सो को फाउंडेड द स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ हंसराज कॉलेज द्वैत, एंड शी हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ वेरियस सोसाइटीज इन हंसराज कॉलेज। तो आज हम प्रतीक्षा से बात करेंगे। वेलकम प्रतीक्षा, कैसे हैं आप? Hello everyone. So yeah, thank you for the nice introduction. And yeah, I'm doing very well. And I would like to appreciate your initiative first of all. कि बहुत अच्छा initiative है. I guess बच्चों को inside DU scenes अच्छे से पता लगता है when someone from DU tells them कि कैसा है क्या है. वरना इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें होती है. So yeah, I would appreciate that a lot. And hello everyone. I hope all of you are doing good. ओके, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अनकन्वेंशनल सा कोर्स जियोलॉजी ऑनर्स क्यों किया, एंड टेल अस समथिंग मोर अबाउट व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट। Okay. So geology honors like generally जब मैं किसी को भी बोलती थी DU में that I'm studying geology honors, so everyone used to confuse it with zoology. तो सबसे पहले तो मैं ये डाउट क्लियर करती हूँ. Zoology है study of animals and geology is study of minerals, rocks, stones. So yeah. So why I took geology? To be honest, it was a very impulsive decision on my part. Like I had dropped 1 year for NEET. Not exactly NEET. I was in Delhi only. मैंने रामजिस में एडमिशन लिया था बॉटनी में and I was preparing for NEET. ना मेरा NEET हुआ and I realized that मुझे बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. So I was very confused. It was a very confusing, very depressing phase that time. And I just looked after like बहुत सारे जो भी conventional science courses है, non-conventional science courses है, DU में I started exploring them. And मुझे geology के बारे में like I met some seniors from geology and I don't know, like it somehow hit me, it somehow interested me. कि this is something different and this is something which like जहाँ पे भेड़ चाल नहीं चलना पड़ता है I would say. And also study of rocks और ये है हाँ I would say the most important reason is इसमें field trips है like इस course में. So that interested me a lot. So मैंने ले लिया बस. ऑलराइट। सो यू सेड यू हैव बीन इन रामजस एज वेल। तो रामजस के बाद हंसराज अनुभव अच्छा रहा, या कहाँ पर रामजस अच्छा ज़्यादा लगा, हंसराज ज़्यादा अच्छा लगा? व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ बोथ द प्लेसेस? यार अब दोनों कॉलेज के ऑडियंस मुझे आके मारने मत लगना बता दे रही हूँ मैं. बट एनीवेज सो रामजस see both colleges have its own pros and cons. But I would say Hansraj was a life-changing experience for me because DO आकर के जो बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है I've actually lived that transformation. So obviously I lean a bit more towards Hansraj. But yeah, I would say that both colleges has its own pros and cons. As I said, each coin has its two sides. So रामजस का ये है कि I would say कि क्राउड ज्यादा वाइब्रेंट है हंसराज का. लाइक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, इसमें वैरी वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So I feel that हंसराज का क्राउड ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल है. आई लव बीइंग इन सोसाइटी इन हंसराज. And Ramjas is also good, obviously. And one important thing is that एक चीज तो है कि हंसराज के कि प्रिंसिपल जो है मैम रमा मैम, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट. और रामजस के प्रिंसिपल आई मतलब पॉलिटिक्स वगैरह तो काफी है. प्रिंसिपल का तो इतना ज्यादा मतलब जो बोलते हैं बोल बाला है नहीं. सो दैट इज वन प्लस पॉइंट ऑफ रामजस. And I would say Ramjas में like it also differs from department to department. But Ramjas में कुछ departments बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं. Like the department I was in for 1 year, botany department. उसके teachers like they were very well, I would say well qualified and उनको मतलब they were very good. They were actually good. वो अलग बात है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं करता था botany. But the teachers were very good. The crowd was also good. But yeah, I lean a bit towards Hansraj. So, so you, as you are from Odisha, so what made you to
to come from Odisha to Delhi for study purpose? Yeah. So I would say that again, this was an impulsive decision. Uh, like the environment I live in, यहाँ पे शायद ही कोई ड्यू जाता होगा. Okay, like I belong to a very small place in Odisha. So and I my intention was that मुझे यहाँ से बाहर निकलना है. Like I want to explore opportunities. So मुझे ये नहीं पता था कि मैं दिल्ली चली जाऊंगी. But मुझे यहाँ से बाहर निकलना था to explore opportunities and all. So I started exploring options, uh, like through friends, through internet. So I came across you and I just applied. मेरे को ये पता था कि like जो भी मेरे environment में like study atmosphere भी है, everyone is talking about NEET और engineering. Like यही दो के बारे में बात करते हैं लोग generally. So so I just like जैसे मैंने बताया कि मैं नीट के लिए पहले गई थी दिल्ली. तो मैं भी like उसी क्राउड की पार्ट थी. I won't say कि मैं different थी या something. Like I also went to Delhi for preparing for NEET. पर जब पता चला कि like there is a lot of things you learn after coming to Delhi, I would say कि अब कुछ मिले ना मिले you get a lot of exposure कि क्या क्या career options है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट करता है, you can explore that. So that is what I did and मुझे around 3 to 4 months में पता लग गया था कि biology और NEET medical is not for me. So yeah. Okay. So also, what will you suggest about living in Delhi, especially for the girls? How, how can people adjust living in Delhi? Okay. So this is a very important question, I guess. And the experience also differs from person to person. कुछ लोग बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं जनरली जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं स्कूल में थोड़ा मिक्सअप होते हैं. लेट मी बी क्लियर, आई वाज नॉट दैट टाइप. आई वाज अ कंप्लीट नर्ड, आई वाज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट इन स्कूल. मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी एक वर्ड. सो in my for students like me, I would say the first months will be definitely challenging. मैं कोई भी ऐसा पिक्चर नहीं दूंगी तुम्हें जो कि रियलिस्टिक नहीं है. ओके क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कल्चरल शॉक होता है when you meet so many people. अब तो पता नहीं कोविड की वजह से कब खुलेगा but still uh, when you meet so many people you get cultural shock, you get like you have to actually talk with people, go out of your way and talk with people. क्योंकि तुम बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे because you're alone here. So that may be challenging for people like me, but it's worth it. It's completely worth it. You learn a lot through this process. And for girls, I would say, like there is a complete picture of Delhi. मतलब दिल्ली के बाहर तुम जाओगे तो दिल्ली का एक बहुत गंदा सा पिक्चर आता है कि दिल्ली सेफ नहीं है लड़कियों के लिए and all. But the place we live in, like North Campus, I would say that is very safe for girls. To be honest, to be very honest. मतलब I didn't encounter any such incident, especially because ये जहाँ पे सिर्फ students ही रहते हैं. You won't get मतलब ज़्यादा people from like working profession or something. It is a student area. So I guess this is what has made the campus vibrant and safe. But yeah, PGs के restrictions तो होते हैं. If you are planning to live in hostel or PGs, थोड़े restrictions होते हैं girls PGs के compared to boys PGs. So, अगर you want to have fun, then you should like choose PGs according to your preference. कि कहाँ पे ज़्यादा restrictions नहीं है, कहाँ पे ज़्यादा restrictions है. It completely depends on your preference कि तुम्हें college life enjoy करना है या पढ़ाई करनी है. So yeah. So apart from studies, what else one gets in due or being in Delhi? A hell lot of things. Like I would say, मैं तो पढ़ाई को I would keep a side वाला thing which I have gained from like Delhi. To be very honest, like obviously, as I said कि किसी के लिए पढ़ाई important होती है, but मेरे लिए नहीं थी. I gained hell lot of things. Like I improved my communication skills. मेरे पर्सनालिटी में जो चेंजेस आई है आई कैन क्लियरली सी दैट. जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल टाइम में मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी किसी से. And now I go and perform in open mics. People know me. Like आप हंसा करके भी if you ask 10 people, they know me. So this is something like आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज है,
but these are very big achievements in life. और you get to learn a lot of things. मतलब कि obviously तुम किसी और जगह में जाते हो, you take your own responsibility, then you learn a lot of things for like कैसे सस्टेन करना है खुद को. एक लिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं. सो या, सो जैसे मंथ के एंड में चिंदी पनी करनी पड़ती है. सो या, दैट इज देयर इज अ लॉट, हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. मतलब कि जब तुम अकेले रहते हो किसी जगह पे, या फिर लाइक स्पेशली इन एटमोस्फेयर लाइक नॉर्थ कैंपस और आई वुड से दिल्ली, तुम बहुत लोगों से मिलते हैं. देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स, देयर आर पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. So when you interact with this people, and I would say that don't lose any opportunity. Societies join करो, लोगों से interact करो. Networking is very very important in today's world. So just don't lose on anything. Just go for it. And जो भी अपनी insecurities हैं, जो भी confidence issues है, उसको side में रखो and go for it. और देखो क्या होता है. मतलब ऐसे तो सब बोलते हैं कि मतलब इनसिक्योरिटी साइड में रखो, या जैसा आपने कहा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हुई, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया कहाँ से, वो फर्स्ट स्टेप क्या था, या वो जो इनहिबिशन होता है, लोग बोलते हैं ये करना वो करना, बट जो पूरा प्रोसेस होता है, उस मतलब इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का प्रोसेस, उसके बारे में कुछ और बताना चाहें आप? तो बेसिकली मुझे लगता है ना कि व्हेन यू आर विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्राउड, जैसे कि तुम स्कूल टाइम में एक ही क्राउड के साथ रहते हो फ्रॉम 1 to 12 क्लास. सो ऐसा होता है कि उस क्राउड के साथ एक बिहेवियर तुम्हारा अकस्टम्ड हो जाता है. तो तुम जब नए जगह पे जाते हो, यू कैन कम एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. यू आर अलाउड टू डू दैट एंड नो वन विल जज यू. सो दैट इज वन थिंग. और आई वुड से कि ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आता है बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. क्योंकि तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला if you don't like put efforts on yourself, if you don't put efforts on like interacting with people, if you don't put extra efforts in college, तो तुम्हें कोई नहीं पहचानने वाला. तो that is a thing कि मतलब when you have to do something, तो कंफर्ट जोन से निकलते हैं. वरना इंडियन एटीट्यूड तो पता ही है कि नहीं, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, मतलब जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे वाला थिंग. सो या, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग. तो इस पूरे सफ़र के जो आपका दिल्ली में या दीव में अभी तक का सफ़र रहा है, उसमें सबसे मेमोरेबल क्या रहा है? Yeah, memorable. So obviously it was fest का season. Like fest का season is like it is very nice. You will see like बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बोला vibrant crowd. I'm using the word vibrant a lot. I apologize for that. But anyways, so और ये भी होता है कि फेस्ट के सीजन में यू गो विद फ्रेंड्स टू विजिट अ लॉट ऑफ लाइक कॉलेजेस. फिर बहुत कुछ होता है. लाइक आई वोंट गिव यू स्पॉयलर्स कि क्या क्या होता है एंड ऑल. यू कम एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ. या टॉकिंग टू यू फील्स लाइक दैट यू हैड अ लॉट ऑफ फन, और ऐसा लग रहा है वो एनर्जी वहाँ से यहाँ तक रिजोनेट हो रही है. तो मतलब जो फन वगैरह तो है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई हो पाती है? ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई पूरी गायब भी हो जाती है? यार देखो, ड्यू में 2-3 तरह के बच्चे होते हैं. एक होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, ओके, साल भर पढ़ते हैं और फन भी करते हैं, एक ही होते हैं. और एक होते हैं सिर्फ पढ़ते हैं. आई एम नॉट जजिंग एनीवन, ठीक है, एवरीवन इज ओके इन देयर पार्ट. एंड एक होते हैं जो एग्जाम से पहले पढ़ के मार्क्स लाते हैं. आई विल स्पेसिफाई कि मैं कौन से कैटेगरी में हूँ. बट या, दैट्स एविडेंट. आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो. I guess that's evident. Yeah. So But so yeah, as we are proceeding to, yeah, yeah. but sorry for interrupting, but I would No, say no. to like whoever is watching that even though I'm saying this, कि ऐसे categories हैं, you should have only fun and all, but एक और चीज है कि you can always have the balance. मतलब कि तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम फन भी कर सकते हो. तो आई वुड से कि पढ़ाई को एकदम से नेग्लेक्ट भी मत करना, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर मास्टर्स एंड ऑल, ऑब्वियसली यू नीड नॉलेज कि तुमने बैचलर्स में क्या पढ़ा है. डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट वोंट हेल्प यू देयर. सो या, स्टडी अ बिट, बट इतना ज्यादा भी आई वुड से एनरोस मत हो जाना बुक्स में कि यू फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ. सो या, देयर इज अ बैलेंस व्हिच इज नीडेड.
which again you develop after, when you come out of your home or your hometown, I guess. So, based on your knowledge and experience which you have earned till today, will you suggest people to go for the geology honors? See, there are two sides of the coin over here. So I would say कि 12th के बाद people generally don't see मतलब कि generally don't know कि उनका area of interest क्या है. So first of all, I would like people कि कोई भी कोर्स लेने से पहले research a bit about it. ऐसे ही मतलब ड्यू में आना है बोल के कोई भी कोर्स ले लेंगे. I won't suggest that because it worked badly for me. मतलब मेरे को एक year loss करना पड़ा for that. So yeah, I would suggest that कि थोड़ा बहुत रिसर्च तो करना पड़ता है. And if you feel that it is like there are 2 to 3 like points to consider. One is obviously is the subject interesting you, and second job opportunity. कि you have to do that threatening conversation with yourself कि तुम्हें लगता है कि क्योंकि वीडियो का क्राउड तो सब 90% above स्टूडेंट्स होते हैं. सो इतने अच्छे क्राउड में विल यू बी एबल टू स्टैंड आउट अगर तुम ये सब्जेक्ट लेते हो. विल यू बी एबल टू गो फॉर फर्दर स्टडीज मतलब कि करियर पर्सपेक्टिव में कितना इजीली तुम्हें जॉब मिल सकता है. या इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू रिसर्च कितना देर तक तुम्हें ये चीज इंटरेस्ट करेगा. सो यू शुड एनालाइज अ बिट बिफोर कमिंग. और ऐसे कुछ आई वुड गिव अ रोजी पिक्चर ऑफ जियोलॉजी और इन एनी सब्जेक्ट और कॉलेजेस इन जनरल. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं. लाइक टीचर्स आर गुड बट नो वन विल डू स्पून फीडिंग ओवर हियर. यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स. तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू लाइक अरेंज नोट्स फ्रॉम सीनियर्स. तो दैट्स इट कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट रहता है देन गो फॉर इट. और जियोलॉजी लाइफ आई वुड से इज अ बिट डिफरेंट देन अदर मतलब कोर्सेज जो हंसराज में होते हैं या दूसरे कॉलेजेस में होते हैं. बिकॉज यू नो जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्लासेस बाहर होते हैं, डिपार्टमेंट में होते हैं, कॉलेज में नहीं होते हैं. वी ओनली गो टू कॉलेज फॉर ईवीएस एंड ईसीसी क्लासेस और जनरल इलेक्टिव क्लासेस. सो आई वुड से कि उसका लाइफ थोड़ा डिफरेंट होता है. जनरल क्राउड वी यूजुअली मतलब हम एक वर्ड यूज करते थे. I don't know if it is like appropriate to use, but Naja is all are the like Hansraj. So so yeah, like Hansraj की है but Hansraj की नहीं है. But anyways, so you will get a Hansraj ID card, but you will spend most of the time in your department. So department life is a bit different from college life, I would say, because department में you get to interact with a lot of people. PhD scholars होते हैं, MSc people are there, but there are no such I would say departmental societies which मतलब हर department में होते हैं colleges के. और दूसरे दूसरे कोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो तुम्हें पर्सनल एफर्ट डालना पड़ेगा. लाइक जॉइनिंग सोसाइटीज इन कॉलेज एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉलेज. लाइक देयर इज ए पॉइंट इन हंसराज व्हिच इज कॉल्ड एलपी. तो तुम लाइक आई वुडंट सजेस्ट टू बंक क्लासेस बट तुम ऐसे जो 12:40 to 1 वाला टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, तब जाकर के बैठ के यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल. तो या यू कैन गो लाइब्रेरी, यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल. बट यही है कि डिपार्टमेंट लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इट इज ऑल्सो फन इन इट्स ओन वे. सो या एंड प्रोफेसर्स जो होते हैं डिपार्टमेंट में जनरली दे आर लाइक वो एमएससी वालों को भी पढ़ाते हैं. दे डोंट ओनली टीच द बीएससी पीपल. सो वी आर लाइक छोटे बच्चे फॉर देम. दे डोंट पे बहुत ज्यादा अटेंशन टू अस. बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि पीएचडी स्कॉलर्स पढ़ा रहे होते हैं और प्रोफेसर्स नहीं पढ़ाते हैं. So as I told that no one is going to spoon feed you over here. So तुम्हें खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा. Yeah, that's So, it. yeah. और career So, opportunities तो है, like you can get jobs in PSUs after qualifying GATE. मतलब MSc करना पड़ता है. MSc is the minimum qualification in geology because you learn geology from zero in BSc. So you have to go up till MSc. There is a GSI exam if you all know. I don't know if you know, but it's a part of like UPSC CSC exam. So that is just for geologists. So that is one scope, and I would say PSUs में job आते हैं, and there are some jobs in NGO if you are interested in a particular subject of geology. Like geology में बहुत सारे sub subjects होते हैं, like in every other course. So yeah,
स्कोप तो है, लाइक सब कोर्स में स्कोप है. इन जियोलॉजी में आई वुड से कि कंपटीशन थोड़ा कम है, बट कॉम्पिटिशन जहाँ बच्चे कम है वहाँ पे सीट्स भी कम है. तो या सो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन. तो जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, अभी अभी भी सोच रहे हैं कि ड्यू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर सच ड्यू एस्पायरेंट्स? सो आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्यू इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर तुम्हें ड्यू में एडमिशन नहीं मिलता है तो डोंट बी डिसहार्टेंड, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस टू एक्सप्लोर. ठीक है. So, and you can always come for PG, like MSc in DU. And if you are getting admission in DU and you are lucky enough to bag a good college, then as I said, I would suggest you to maintain that balance between fun and studies. And except that, I would say कि don't be a lot choosy about colleges. Rather be choosy about departments कि कौन सा department कौन से college में अच्छा है. That is very important. तो थोड़ा सा research करना बनता है before you are going into any course or any college. So yeah, that's it. बाकी all the best for your journey. Yeah, thank you. So thank you very much, Pratiksha, for joining us. And so that's all in this video. If you like the video, please like, share and subscribe the video. आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमें भेजिएगा. And thank you very much again, Pratiksha. Bye guys. Bye bye. Hope to see you soon. Bye.